Hello everyone, welcome to Ashish Sharma's classes. So today we are going to discuss part 2 of chapter chemical reactions and equation. So our next topic is types of chemical reactions. So there are various types of chemical reactions. We will discuss them one by one. So the first chemical reaction is combination reaction. So the combination reaction is a reaction in which two or more substances combine to form a single new substance. So in this reaction, two or more substances are combined to form a single product. For example, calcium oxide in solid state plus water in liquid state give rise to calcium hydroxide in aqueous state. So this calcium oxide is known as quicklime, very important. And this calcium hydroxide is known as slaked lime. This is also very important. So this reaction is very important. Second example is calcium hydroxide, which is also known as staked lime. In the presence of carbon dioxide, give rise to calcium carbonate plus water. Third example is carbon plus oxygen give rise to carbon dioxide. Fourth, water is formed from hydrogen plus oxygen. Then CH4, which is known as methane, plus oxygen give rise to carbon dioxide and water. Then the sixth example is glucose, which is known as C6H12O6 plus oxygen give rise to carbon dioxide, water plus energy. So these all are the examples of the combination reaction. So in board exams also they are directly asking you what is combination reaction, give an example, or they will give you number of reactions. You have to find out whether the reaction is combination reaction or any other type. So these reactions are very important. Their names are very important. For example, calcium oxide is known as quicklime, calcium hydroxide is known as slaked lime. So these words are very important. Second type is known as decomposition reaction. So in this decomposition reaction, a single reactant is break down into the number of products. So decomposition means decomposing a single substance into number of substance. So it is simply known as breakdown of single substance into two or more simpler substances. Is it clear? So there are number of types, for example, thermal decomposition, photochemical decomposition, and electrochemical decomposition. This is very important question because in board exams, number of questions are coming from these types of decomposition. First, thermal decomposition. So in thermal decomposition, word thermal means related to the heat. So in thermal decomposition, the this ferrous sulfate form the ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. But for the formation of these three substances, heat is required. So means that whenever this ferrous sulfate will give rise to ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide, there will be supply of heat. Without supply of heat, this reaction is not possible. So in thermal decomposition, heat is supplied so that the reactant is converted into two or more substances. Then second example is calcium carbonate, which is known as quick limestone. When heat is supplied, it gives rise to calcium oxide plus carbon dioxide. Then the second type is known as photochemical decomposition. So this photo means related to the light. So these two reactions are very important. So whenever the AgCl means silver chloride is see this activity, when the silver chloride is present in the sunlight, it will form the Ag plus Cl2. So जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू Ag प्लस Cl2. सो देखो ये एक्टिविटी से पता लग रहा है कि हमने जो है वो एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखा था सॉलिड स्टेट में, बट जब उसके ऊपर सनलाइट डली तो अल्टीमेटली जो है वो क्लोराइड जो क्लोरीन गैस है वो निकल गई, और जो सिल्वर है वो कौन सी कलर में हो गया, ग्रे कलर में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब भी सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो
जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या कलर होता है. सो द प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका कलर कौन सा है? ग्रे कलर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second example is silver bromide in the presence of sunlight give rise to Ag plus Br2. Then is the last type of decomposition, that is electrolytic decomposition. In electrolytic decomposition, this electrolytic means decomposition in the presence of electricity. So example is water. So whenever water is decomposed, there is a decomposition of water in the presence of electricity, there will be the formation of hydrogen gas as well as oxygen gas. Very important. Then comes the third reaction, that is known as displacement reaction. So in case of displacement reaction, a chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous salt solution is known as displacement reaction. तो ये नाम से पता लग रहा है कि जब भी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अगर हम बात करें, दिस इज नोन एज आयरन. अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है? आयरन प्लस यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? कॉपर सल्फेट. और अगर हम देखें तो आयरन और कॉपर में से ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो आयरन है. आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. मीन्स उसकी जगह पर क्या लग जाएगा? कॉपर की जगह पे क्या लग जाएगा? आयरन. तो ये क्या बना देगा? Fe और SO4 साथ में लग जाएगा और जो कॉपर है वो बेचारा अलग हो जाएगा. So why it is happening? Because iron being more reactive will displace the copper from its position. So जब भी किसी रिएक्शन में ऐसे हो रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह पे लग रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये किसकी, इसकी एग्जांपल में एक फर्स्ट एग्जांपल ये आएगी. सेकंड एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फाइड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अगला जो एग्जांपल है वो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड का है. इसमें लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड जो है वो बना देगा. क्लियर? सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन कम्स द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पता लग रहा है कि डबल दो चीज़ें जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगी. सो इन दिस ions get exchanged between the two reactants which form a new compound. So इसमें क्या होगा? जो दो reactants हैं वो अपने ions एक दूसरे के साथ exchange करेंगे. For example, sodium sulfate plus barium chloride give rise to barium sulfate plus sodium chloride. तो यहाँ पर सोडियम जो है वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? क्लोराइड के साथ. और जो बैरियम है वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? सल्फेट के साथ. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइंस. इसके जो इस कंपाउंड ने दूसरे कंपाउंड के आइंस के साथ एक्सचेंज कर लिया. सोडियम ने कहा मैं क्लोरीन के साथ लग जाता हूँ और बैरियम ने कहा मैं सल्फेट के साथ लग जाता हूँ, जिसकी वजह से देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइंस एंड अल्टीमेटली जो है उसने क्या बना दिया? बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. सो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन कम्स दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि जब भी कोई टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं और अगर नीचे लास्ट में बॉटम में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो बन रहा है तो उसको हम बोलते थे प्रेसिपिटेट. सो द प्रेसिपिटेट रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट्स. द इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉल्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेट. तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि सपोज हमने सिल्वर नाइट्रेट को लिया, उसको KCl के साथ रिएक्ट करवाया. सो ये आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट को हमने पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या किया? रिएक्ट किया. सो अल्टीमेटली क्या बना हमारे पास? AgCl जो है वो मिला प्लस KNO3 जो है वो मिल रहा है. तो ये जो AgCl हमें मिला, सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट. तो ये जो आपको नीचे बॉटम में प्रेसिपिटेट दिख रहा है, ये कौन सा प्रेसिपिटेट है? AgCl. सो दिस इज AgCl. AgCl ने जो है वो प्रेसिपिटेट बना लिया. ठीक है. और KNO3 जो है वो एक्वस स्टेट में हमें ऊपर दिख रहा है. So this is the type of precipitation reaction in which a insoluble substance is deposited at the bottom, which is known as precipitate, and the remaining part is known as supernatant. So this is the example of precipitation reaction.
Then comes the another type of reaction that is called as exothermic reaction and endothermic reaction. Very important. So in exothermic reaction, heat is released along with the formation of products. So exo means exit. Exo से याद रखना हमने, exit means there will be exit of heat. So जब भी हमारा कोई रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने CH4 लिया जिसको हम मीथेन बोलते हैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। कि जब भी ये रिएक्शन हुआ एकदम से, ये जो रिएक्शन है इसकी हम इसको बोलते हैं कंबशन। सो जब भी कंबशन हुई वहाँ पर जो है देयर इज रिलीज ऑफ हीट। जब भी किसी रिएक्शन में हीट का रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता ही है कि जो रेस्पिरेशन हमारे प्रोसेस लाइव प्रोसेस में होती है, उसके अंदर होता है क्या है कि जो ग्लूकोज है वो जब भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको कोई पूछे कि रेस्पिरेशन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो आपको पता ही लग रहा है कि जब भी ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी, सो अल्टीमेटली हमारे अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा, प्लस हमें जो क्या मिलेगी, एनर्जी का सोर्स मिलेगा। मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन कम्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। So opposite of exothermic reaction is endothermic reaction. In this we are absorbing the heat. हमें heat की जो है वो supply चाहिए, उसके बिना reaction possible नहीं होगा. So the reaction in which reactants absorb the heat energy from the surrounding. क्योंकि reactant ने जो है वो react करके product बनाना है. So reactant को क्या करना पड़ेगा, heat को सराउंडिंग से, अपने इर्द गिर्द से हीट को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर हमने लिया NH4Cl प्लस वाटर प्लस हीट गिव राइज टू NH4Cl। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना जो रिएक्टेंट है, इसको पहले हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी। जब इसको हीट की सप्लाई देंगे तभी अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमें एक्वस स्टेट में मिलेगा। सेम हेयर ऑल्सो, जब भी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होंगे और अगर हम हीट की सप्लाई देंगे तभी जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी। सो इन रिएक्शंस में हमें हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट को हीट जो है वो अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी जो है वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब देर आर नंबर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। कि जब भी आइस मेल्ट होगा और वो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो आइस को क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगा। सो देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर हम देखें तो कुकिंग ऑफ फूड, जब हम फूड को कुक करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वो खाने को हीट की सप्लाई देनी पड़ती है, तभी वो जो है वो खाना कुक अच्छे से होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देन कम्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें इनका डिफरेंस जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हमें ऑक्सीडेशन को 3 डिफरेंट वेज से समझना है। ऑक्सीडेशन मीन्स व्हेन वी आर एडिंग ऑक्सीजन टू दी सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, उसके अंदर अगर हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, मीन्स यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3OH था और इसका हाइड्रोजन जो है निकल चुका है, अलग हो चुका है। अब इससे हमारे पास रह गया CH2O और इसका जो एक हाइड्रोजन था वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल गया। सो हम बोलेंगे यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड द थर्ड टाइप इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 2 8 3। सो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। अगर वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी को दे रहा है, तो Al3 पॉजिटिव स्टेट में आ गया, मीन उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को
दे दिए हैं। अब वो जो है उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, मींस इट इज दिस रिएक्शन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकती है, या तो ऑक्सीजन का अगर किसी में एडिशन हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, अगर किसी में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, और अगर किसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। देन कम्स द रिडक्शन। इससे ऑपोजिट जो है वो क्या होगा, रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, देखो पहले यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था, अब कॉपर से के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, अब कॉपर अकेला है। कॉपर हमने देखना है कॉपर को, क्योंकि उसके साथ पहले ऑक्सीजन लगा था, अब उसके साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ। नाउ देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। अब इससे ऑपोजिट, वहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखो यहाँ पर C2H4 है, C2H4 है, प्लस हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, C2H6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुए, मीन्स इट इज ऑल्सो अंडरगोइंग रिडक्शन। देन कम्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, गेन होंगे। अब आयरन था, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, जिसकी वजह से क्या बन गया, 2F नेगेटिव। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, गेन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस होंगे। सो ये थोड़ा सा हमें पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझना था। इसके समझने के बाद ही हमें जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पता लगेगा, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन से नाम से पता लगा, रिड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिड प्लस ऑक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, वो वाला रिएक्शन जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड जो है वो चल रहा है किसी रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली और एट अ सेम टाइम इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम किस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के पेपर में वो पूछते हैं, उन्होंने आपको एक रिएक्शन दे देनी है और वो बोलेंगे अब बताओ इसमें से कौन सा जो स्पीसीज है, कौन सा जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा जो रिएक्टेंट है वो रिडक्शन कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस वाटर। अगर हम इसमें देखें तो कॉपर पहले जो था वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में था। अब कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, अब कॉपर रह गया अकेला, मींस देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मींस यहाँ से पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर पहले क्या था, हाइड्रोजन अकेला था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मींस यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड सेम टाइम एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। देन कम्स द अनदर एग्जांपल, दैट इज जब भी हमारे पास Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन होगा, इन जब वो Fe प्लस वाटर बनाएंगे, सो इसमें देखो पहले यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, देयर इज ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मीन्स देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, बट अब यहाँ जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग चुका है, सो देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। देन देर आर अनदर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें H2S के साथ पहले क्या था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट आगे जाके ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सिर्फ सल्फर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स इसका हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर पहले क्लोरीन थी, अब क्लोरीन जो है वो उसके अंदर क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो चुका है, पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन ऐड हो गया, सो देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने अभी पीछे पढ़ा, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो दोनों जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली सेम ही टाइम पे एक रिएक्शन में हमें मिल रहे हैं, सो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ पर क्या रह गया, कॉपर। तो जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। वी ऑलरेडी नो दिस इज नोन एज रिडक्शन। जहाँ जो रिएक्शन में रिडक्शन होगी उसमें ये जो सब्सटेंस है, ये जो स्पीसीज है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। सो जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पर हम क्या बोलते हैं,
उसको इस स्पीसीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मीन्स यहाँ पर क्या हुई है, अब यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। सो ये वाला सब्सटेंस जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो कहने का मतलब जहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर हमने क्या देखा, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हुई है। सो ये वाली स्पीसीज क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे उल्टा, जहाँ रिडक्शन होगी वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये वाला, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाला सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा होगा। सो रिडक्शन जहाँ पर हो रही है उसमें हम स्पीसीज को बोलेंगे, वो वाली स्पीसीज जो रिडक्शन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पार्ट में हमने सारा पढ़ लिया कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और पेपर में इन पार्ट्स में से बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो आपने जो है ये अच्छे से सारी रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे से कर लेनी है। दिस